Why does this look so zoomed in? Alright, today is a very busy day and I cannot believe that I'm shooting this right now, but I just had to because this is something that I want to share with you guys. So how are you guys? I hope everyone is doing great. I hope you guys are staying safe. If you can see me sweating, please let's just get over it together because I had to switch off our fan क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है. So I have this reel that I have to make for a hair color brand that I've loved for years and years. My mom and I both love it. I will be changing my hair color. The last time that I colored my hair, it was about, I don't know, 2.5, 3 years back. This is actually my natural hair, the completely untouched Virgin Mary hair. I was actually kind of really liking my natural hair for once, but then this brand deal came and I thought it would be fun to color my hair at home. To add to it, I will be asking my boyfriend to color my hair. As we all know, he is completely out of touch with these things and I'm pretty sure he is gonna paint my face more than he's gonna paint my hair, but I will take care and not let that happen. So we'll start coloring my hair in about 5 minutes, and while we do that, I found a topic for all of us to talk about, to discuss, and that is the thing that we all collectively love to hate. It's Bigg Boss. It's Bigg Boss season 15. I have some very strong opinions about the contestants that are in the show this year. I'm judging by the first 4 episodes. I think we have like a pretty solid opinion. I just wanted to share that with you guys and chat and have a good old time. Being completely honest, not much has been going on, but today me and my best friends Aisha, Ritika, Bhumika and him, we are all going out on lunch since मेरे birthday के time पर we were not here and we could not all meet. So this is their way of telling me that they love me, I think, or they just want to eat out. I don't exactly know, but nonetheless it is gonna be fun. It has been so long since I had like a girls' day out and I actually really needed that. So, and huge shout out to my mom for sending this good old trusty hair coloring brush and bowl, since I did not have this at home and I don't know what I would have done without it. Thanks and I love you. I am clearly a beginner, a newbie, a complete rookie, because I do not know how to mix stuff and how much of what to put in. Oh, see, this is why I wish our relationship was a little more than just virtual, because I really want someone to tell me if I should put in this entire thing in, or am I supposed to like put half of this and full of this, or half of this. I swear to God, no one texts me the entire day and the moment that I sit down to film, सबको मेरा याद आने लगता है. What did I say? What did I just say? Oh my God. I did not expect this color to be of this intensity. There is no turning back now. I mean, this looks really exciting. I haven't seen a box dye that looks this intense in color. डॉक्टर घुंगरू बनेगा क्या? मेरे को एक बात बताओ, थंब कौन सा होता है? हाँ ये ना, उल्लू का बाल लगाए या बकरे का? तुम्हें हेयर कलर देखने के लिए रेडी है? हाँ तुमने मेरे को बताया ना. हाँ, आंख बंद करो, आंख बंद करो. के लिए तेरी कसम. सिंगिंग ब्रेक खत्म. ये कलर करवाएगा? हे भगवान, मुझे भी नहीं पता था, तुमको पता है कि ये इतना ब्राइट होगा, बट ब्लैक पे वैसे भी चढ़ के डार्क रेड आएगा कलर. हाँ तो वही अपने ओट्स में क्रैनबेरी छोड़ के तुम्हारा बाल ही काट के डालता है उसे. मतलब मैंने कभी जिंदगी में ना देखा है ना लगाया है. देखो, मैंने वो वाला वीडियो देखा है. हाँ. जिसमें ऐसा फॉइल पेपर डाल के पनीर वनीर बनाता है ना. देखो, तुमको एक ही चीज का ध्यान रखना है, 2 चीज का. एक कि मेरे माथी पे और मुंह पे ना लगे क्योंकि हमें बाहर जाना है. दूसरा कि सारा बाल कवर हो जाए. ये नहीं कि इधर कर दिया, इधर रह गया, इधर गोले में रह गया. कैसे भी लगा सकता हूँ ना, चालू कर सकता हूँ ना. हाँ, कहाँ गया? नहीं, ऑलरेडी बाल पे लग गया. तुम्हारे पीछे घूमो. मालिक
कुछ तो भी डेंटिंग पेंटिंग जैसा फील आ रहा है पीछे से। शक्ति तेरे। कौन थी वो लास्ट ओटीटी में, कौन थी जो हमको पसंद नहीं थी? दिव्या। उसको हाँ। भी झेल सकता हूँ मैं। हाँ एक्चुअली ये वाला सीजन देख के ऐसा लग रहा है कि दिव्या भी अगर होती तो चलता। मैं दिव्या को लिटरली टॉलरेट कर सकता हूँ। हाँ। ये लोग इतने बड़े ऐसे सेलिब्रिटी होके अगर ऐसा बिहेव करते, सेलिब्रिटी है नहीं मतलब जानते हैं लोग इनको। हाँ वही जय भानुशाली। ओह माय गॉड। मुझे पर्सनली बहुत पसंद था क्योंकि वो डांस इंडिया डांस का होस्ट था और वो शो में वो काफी फनी था। मतलब ही हैज अ वेरी नाइस पर्सनालिटी ऑन स्क्रीन आफ्टर द फर्स्ट फ्यू एपिसोड्स। भाई मैं सच में बोल रहा हूँ, मैं डांस इंडिया डांस में कितना मतलब ऐसा लगता था कि फक जैसे मिलूंगा तो कितना नाइस होगा, कितना स्वीट लगता है, स्वीट गाय। बिग बॉस में तो इतना घटिया इंसान लग रहा है वो। ओह माय गॉड, उसका बात करने का तरीका, वो सबको अपने से बहुत नीचे समझता है। एक जेन्युइन क्वेश्चन है मेरा कि अगर सब लोग बिग बॉस पे हैं, तुम लोग सब सेम शो पर हो, तो कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि वो कुछ बहुत ऊपर है और बाकी सब एकदम न्यू कमर्स है, न्यूबीज है? एट द एंड ऑफ द डे तुम लोग सेम शो पे सेम कंटेस्टेंट्स वाले लेवल पर ही हो ना, या फिर तुम होस्ट हो। होस्ट भी नहीं हो, तुम भी वही खेल रहे हो जो वो लोग खेल रहे हैं। सो हाउ आर यू अबव देम? वो थोड़ा सा एंटाइटलमेंट वाला, सीनियोरिटी दिखाने वाला थोड़ा सीन कि मैं बहुत टाइम से इंडस्ट्री में हूँ, तू कौन है? हाँ एग्जैक्टली स्कैल्प पे लगेगा, चलेगा ना? चलेगा। जय भानुशाली, वी डू नॉट लाइक हिम, Not at all. नोप। एंड हमने सीजन का फर्स्ट बड़ा लड़ाई भी देखा बिटवीन हिम एंड प्रतीक। I mean, प्रतीक तो स्टार है भाई। हाँ मेरे को फर्स्ट टाइम जब ये ओटीटी में आया था मेरे को लगा था कि फक ये फंसने वाला है, बट जेन्युइनली बहुत नाइस पर्सनालिटी है उसका विद टाइम। अगर किसी को भी तुम कॉर्नर करोगे जैसे सब लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, वो भी मतलब 12 लोग अगर एक बंदे को कॉर्नर करेंगे तो यार होगा ही। एंड ऑलरेडी सबको पता है कि प्रतीक का नेचर कैसा है, सबको पता है कि वो दूसरों को पोक करने वाला है, दूसरों में से अग्रेशन निकालने वाला है। बट देन अगेन अगर मतलब तुम अभी ऐसा माँ का गाली दे रहे हो शो पर, सबको अल्फा मेल बनना है। अल्फा मेल टर्म से ही मुझे बहुत प्रॉब्लम है। आई डोंट थिंक कोई भी कितना भी सीनियर हो उसको किसी की भी माँ के बारे में गाली देने का राइट होना चाहिए। और ये बोल के वो जस्टिफाई कर रहा है कि उसने मेरा कॉलर पकड़ा। हाँ उसने पकड़ा तो तू उसको गाली दे ना, उसकी मम्मी को क्यों गाली दे रहा है? सर पे लग गया, चलेगा। डांट से जय इतना फाउल एनर्जी लेके आया था ना, मैं तुमको बोला था मालूम है कि मेरे को जय को देखने का, इसका पर्सनालिटी कैसा है। मेरे को नहीं देखना है, सच में नहीं देखता। द नेक्स्ट इज आई थिंक ये सीरियल्स में आती है ना, खतरों के खिलाड़ी में भी थी ऐसा मम्मा ने बोला। आई डू नॉट लाइक हर। हिंदी सेइंग उस पे एकदम परफेक्ट बैठता है। तुमको पता है कौन सा? एड़ा बन के पेड़ा खाने वाला। मतलब वो हर जगह अपने आप को क्यूट और बबली दिखा के उसको सब समझता है। यू नो उसको पूरा गेम अच्छे से बाहर से देख के आई है, उसको सब समझता है, उसका बहुत फिक्स है उसको क्या क्या करना है। बट देन वो सबके आगे जाके वो क्यूट बनती है और क्यूट बनने वाले लोगों से मुझे बहुत इरिटेशन होता है। ऐसे नाम के लोग होते हैं थोड़े से। हाँ उसका गलती नहीं है मतलब। द नेक्स्ट इज विशाल लुक्स लाइक ही इज अ ग्रेट एक्टर क्योंकि इसका बात करने का मतलब इसका डायलेक्ट वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट वो अपने कैरेक्टर से बाहर ही नहीं आता। बिग बॉस इज नॉट महाभारत। हाँ मतलब इसके मुंह पे बाण मारी है प्रभु। हाँ उसको लग रहा है कि बिग बॉस के अंदर का बिग बॉस वही है। कैमरे के सामने आके बात करते हैं। कुछ लोग है ना इवॉल्व होना नहीं पसंद करते। हाँ ठीक है, जैसे टू बी ऑनेस्ट अगर देखा जाए तो महाभारत का अभी मीम एकदम फनी है। हाँ हे प्रभु इसके पेट पे बाण मारे, वो हम लोग कितना हंसते हैं। हाँ एग्जैक्टली। बट वो हुआ ही नहीं, उसको लगता है कि मैं अभी भी कूल हूँ। हाँ वही चीज बड़ा कूल चल रहा है। नहीं ब्रो। और सबसे ज्यादा इरिटेटिंग चीज उसके बारे में जो हमने कल के एपिसोड में देखा, शमिता वाज हैविंग लाइक अ लिटरल ब्रेकडाउन। उसके सामने वो एकदम स्वीट बन रहा था और वो पीछे जाकर जय वगैरह के सामने हंस के बोल रहा है कि मैं तो हमारे साइड ही उसको करने का ट्राई कर रहा हूँ और बहुत मतलब वो बिची वाला वो सब। So I think that actually reflects a lot on who he is as a real person. मुझे लगता है ये सारे जितने सीनियर आर्टिस्ट हैं वो लोग भूल गए कि बिग बॉस इज नॉट अ शो, इट्स अ रियलिटी टीवी शो। यू नो तुम रियल पर्सोनास तुम्हारा दिख रहा है उसमें। तुम नारद मुनि, हाँ कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है कि तुमको कैरेक्टर दिया है तुमको वो प्ले एग्जैक्टली वो नारद मुनि का कैरेक्टर इन रियल लाइफ प्ले कर यू कैन नॉट से कि वो मेरे शो पर कैरेक्टर था। दिस इज हु यू आर एज अ रियल पर्सन।
हाँ, अरे गेम खेलो, क्लीन भी खेल सकते। वो काफी स्ट्रॉन्ग हो सकता था इफ ही ग्रू अ स्पाइन and stop bitching around. The next contestant is विधि पांड्या। ये और वो एक और लड़की है डोनल, वो दोनों एग्जैक्टली सेम लगते हैं। सोचो 4 दिन हो गया मैंने इसको देखा ही नहीं, मैं फोन में देख रहा था, ये कौन सी सेम दिखती है, नॉट लाइक फिजिकल एस्पेक्ट्स में, बट उनका पर्सोना इतना सेम है। वो पूरा टाइम किचन में रहते हैं या फिर छोटे छोटे बात पे रोते हैं, तो एक उनका वो पर्सनालिटी ट्रेट है। द नेक्स्ट कंटेस्टेंट इज सिम्बा एंड ही लुक्स लाइक अ वेरी स्वीट सिंपल गाय, बट वो बहुत ट्राई कर रहा है कि कहीं पर थोड़ा सा स्टैंड ले ले, बट उसके स्टैंड लेने से पहले ही सब लोग उसको दबा देते हैं, खत्म हो जाता है। हाँ तो ही इज अ लिटिल स्लो बट ही लुक्स लाइक अ डिसेंट गाय अभी तक तो, है ना? हाँ, क्योंकि मतलब उसका स्टैंड ही नहीं है ना। हाँ एग्जैक्टली, वो स्टैंड लेगा तो लोगों का ओपिनियन बनेगा। वो खाली दिखता है, हाँ आता है, कहीं पर कुछ बात होते रहता है तो बाजू से बस चलता हुआ एक कैरेक्टर है। हाँ। तो वैसा वो फिलर वाला कैरेक्टर है कि 13 लोग कंप्लीट करना था तो एक डाल दिया। हाँ। द नेक्स्ट पर्सन इज द वेरी वेरी फेमस, मेरा नाम गूगल कर लेना तो तुमको पता चल जाएगा, मिस्टर करण कुंद्रा। का भी पर्सनालिटी एकदम फाउल है। हाँ, जय जय जैसा, मतलब ये जय का भी अपडेटेड वर्जन है ना? जय मतलब उसको बुरा करके थोड़ा सा उसको रिडेम्पशन वाला एक फीलिंग है कि मेरे को अभी खुद को रिडीम करना है। करण कुंद्रा इज जय जस्ट 10 टाइम्स मोर ओवर स्मार्ट, क्योंकि उसको पूरा गेम पता है। वो बिग बॉस है, स्टार्टिंग के 14 सीजन उसने प्रोड्यूस करे, उसने चलाए हैं, बताया नहीं किसी को। हाँ, बट वो था हमने देखा नहीं, बट वो था। हाँ, तो वो इधर भी अच्छा बनता है, वो बाहर भी अच्छा बनता है। उसको बहुत लग रहा है कि वो मतलब गेम चेंजर है, वो लीडर है। तुमको पता है कल एक इंसिडेंट हुआ घर के अंदर, जहाँ पर सिर्फ प्रतीक, शमिता और निशांत है। वहां पर वो निशांत और शमिता के सामने उसने हाँ 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 किया किसी चीज में, और बाहर गए और निशांत भी बाहर था, बाहर जाके सीधा मना कर दिया। क्यों? क्योंकि बाहर सारे वो जंगल वाले सब देख रहे थे। एंड इफ दिस इज हिज रियल पर्सनालिटी देन इट इज एक्चुअली वेरी वेरी सैड। और शायद से डोनल या विधि में से किसी एक लड़की ने कुछ बोला, मतलब करण थोड़ा सा ऐसा उस पर हिट कर रहा था, तो उसने बोला कि हाँ आप कतार में आइए, ऐसा कुछ। उसने ये बोला भाई मैं नहीं कतार में लगता, मैं नहीं उन लोगों में से हूँ। हाँ, फिर उसने पता है ना मैं कौन हूँ। हाँ, नाम गूगल कर लियो। चलो मैं तेरे को ढूंढने के लिए गूगल ही करना पड़ता है। हाँ, I hate it when grown-ass men act like literal teenagers। ये सब डायलॉग मतलब नहीं रहा ना? नहीं। उमर रियाज, he is आसिम्स ब्रदर। एक सेकेंड, मेरा एक और ओपिनियन है। ये आसिम से ज्यादा वो दूसरा लड़का है ना ईशान, वो आसिम जैसा क्यों दिखता है अगर वो इसका भाई? मुझे लग रहा है कि इन दोनों का कुछ तो भी मिक्सअप हुआ है। I think he too does not have like an original personality despite having like a brother जो already Big Boss जा चुका और एक काफी popular contestant था। इतना मतलब strong backing होने के बाद भी वो completely blend हो जाता है environment में। उसके पास खुद का कुछ stand नहीं है, उसको जब कोई और लड़ रहा है तो उसके बीच में घुसना है, मतलब उसका सबसे irritating part तो वो था जब प्रतीक आया था सबसे स्टार्ट में, उसने झगड़ा किया था ना, भाई तू क्या ऐसा जा रहा है, तू हाय तो बोल सकता था। हाँ, oh my God, सबको सिर्फ ये प्रॉब्लम है, सबको नहीं, उमर को ये प्रॉब्लम था फर्स्ट डे कि प्रतीक ने उसको हाय क्यों नहीं बोला, ग्रीट क्यों नहीं किया। अरे भाई है क्या तू उसका? तू चीफ मिनिस्टर है कहीं का, तुझे क्यों ग्रीट करे? नहीं किया तो तू भी मत कर, तू कल मत करियो, तू कल उसको गुड मॉर्निंग बेबी मत बोलियो। सो स्टूपिड, मतलब लोग करने के लिए कुछ भी करते हैं। अगर कोई भी ऑडियंस ये देख रही होगी कि हाँ हाय भाई सही तो बोल रहा है, भाई हाय तो बोलना चाहिए, तुम लोग वो भी स्टूपिड है। हाँ, मेरे को ऐसा लगता है, नहीं मैं नहीं स्टैंड करूंगा उनके साथ, भाई तुम भी स्टूपिड हो। नहीं तो नहीं भाई, मैं खुद हाय नहीं बोलता हूँ लोगों को जाके। हाँ, मुझसे पूछो। नेक्स्ट इज अफसाना खान। ओह, ये दिव्या है, ये टाइम के बिग बॉस। दिव्या X3 and we do not mean that in an offensive way, we just mean कि उससे ज्यादा अनोइंग। मेरे को तो बिल्कुल ऐसे लोग फनी नहीं लगते जो एक्सट्रीम चिल्ला के बात करते हैं, मालूम है? एक तो एकदम हाई पिच में, वो सिंगर है, उसको अवेयरनेस है पूरा। हाँ, वही तुमने बोला कि वो सिंगर है, बहुत फेमस सिंगर है वो। तो अगर वो अपने पूरे हाई पिच पे अगर बात कर रही है, तो आई एम श्योर कि वो लोगों को इरिटेट करने के लिए ही बात कर रही है। एग्जैक्टली, मतलब उसको पता है वो क्या कर रही है, उसका आवाज कितना तेज है। ओह माय गॉड, अफसाना अगेन, वो पूरा टाइम या तो सोती है या तो खाती है। हाँ, प्रॉब्लम नहीं है। या फिर वो ये बोलती है कि मैंने खाना नहीं खाया सुबह से, और वो उस चीज पे लड़ाई उठाने का ट्राई करती है, विच आई थिंक इज रियली स्टूपिड। मतलब तुम इतना एज होने के बाद अगर तुम किसी से ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुमको कोई आकर खिलाएगा, देन आई डोंट
know what to tell you. वो भी strangers, साले सब अलग लोग आए हैं, घर वाले थोड़ी ना आए. The next contestant is Sahil Shroff. ये भी इनविजिबल है. तुम्हें पता था ये शाहरुख के डॉन 2 में था? नहीं. जैसे मुझे डॉन 2 में याद नहीं है कि ये कहाँ था, आई एम प्रीटी श्योर ये सीजन खत्म होने के बाद किसी को याद नहीं होगा कि ये बिग बॉस 15 में था. मेरा अभी निकल रहा है. So he is pretty much invisible in the show. And मुझे लगता है कि साहिल या सिम्बा में से सबसे पहले कोई एक निकलेगा. The next contestant is शमिता शेट्टी. We like her, but personally उसका जितना भी थोड़ा सा ऐसा रिस्पेक्ट थोड़ा सा नीचे चला गया. प्रतीक से गुस्से में आके दूसरों को मैप दे दिया. The next is आकाशा सिंह. Again invisible. Apparently she has a huge crush on Pratik. नेहा वसीम वोक थी, थोड़ा सा अच्छा बात. हाँ. 4 दिन हो गया बट मैंने ये लोगों को देखा ही नहीं है. हाँ, क्योंकि ये लोग दिखते ही नहीं है. तो इतने सारे और ये लोग हमेशा झुंड में रहते हैं सारे. तो कौन दिखेगा उसमें से? द नेक्स्ट इज ऑफ कोर्स प्रतीक सहजपाल. वी लव हिम. ब्रो मेरे को लगता है वो फाइनलिस्ट होने वाला है. हाँ. जिस तरीके अगर उसको ऐसे बुली करते रहे, हाँ, तो आई एम श्योर वो फाइनलिस्ट होगा और वो डिजर्व करता है फाइनलिस्ट होना. यप. बट आई ऑल्सो थिंक कि उसको थोड़ा सा अपना अग्रेशन थोड़ा सा चेक में रखना चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर हिम. प्लस उसने बिग बॉस का प्रॉपर्टी तोड़ा, विच वाज मम्मी से कितना उसको हाँ. प्यार है यार. उसके ऊपर से ही गाली देगा और ऊपर से और ज्यादा चौड़ा होएगा तो किसी को भी गुस्सा आएगा. किसी को भी आएगा, नो डाउट. और उसने तोड़ने के इंटेंशन से नहीं किया. हाँ. उसने खाली उसको पता भी नहीं रहेगा कि पीछे ग्लास है. हाँ. उसने खाली ऐसा हाथ मारा रहेगा और पता नहीं रहेगा उसको कि वो टूट जाएगा. हाँ. देन अगेन बिग बॉस मतलब शो ही ऐसा है जो तुम्हारे टेम्पर को टेस्ट करता है, यू नो. बट अगर अच्छा तुम हर चीज पे नॉमिनेट हुए ना, अच्छा हुआ. मेरे को तो अच्छा ही लगा. The next is ईशान सहगल, also known as आसिम रियाज पार्ट 2. ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद. बहुत ज्यादा अनोइंग. एंड एक अनोइंग होता है कि थोड़ा सा चार्मिंग वे में, यू नो, जैसे आसिम था. प्रतीक भी एग्जैक्टली पता है अनोय कर रहा है बट चार्मिंग है थोड़ा सा. बट ईशान इज सो मेरे को वैसे लोगों से बहुत प्रॉब्लम है जो लोग ऐसा बात करते हैं. ये चलना, हाँ, करना, ये लगता है ऐसा इधर और इधर खड़ा है. अब बोल के बता. इस टाइप के लोगों से डील कर लिया अगर तुमने लाइफ में, तो तुम लाइफ में कुछ भी कर सकते हो. मुझे ऐसा लगता है. ऐसा? हाँ. शायद से तुम फेमस क्रू के साथ डील नहीं किया. फिर मैंने काफी डील किया, इसके लिए मुझे पता है कि हम दोनों लाइफ में बहुत अच्छा करने वाले हैं. जैसे भी मतलब हमें इतना प्रॉब्लम नहीं है, उसके सिर्फ वो एक सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी से प्रॉब्लम है, मगर ईशान एज अ होल से हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है. द नेक्स्ट कंटेस्टेंट इज द वेरी वेरी फेमस मायशा अय्यर. उसका पूरा पर्सनालिटी इज बेस्ड ऑफ कि वो अभी किसके साथ अपना लव ट्रायंगल बना सकती है. पहले उसने प्रतीक के साथ बहुत ट्राई किया, फिर उसने सिम्बा के साथ ट्राई किया. ये सब मैंने देखा कैसे नहीं, मैं एडिट कर तुम. हाँ. फिर एट द एंड उसको एक थोड़ा सा वो मिला ईशान से, बिकॉज जितना अटेंशन सीकिंग ईशान उतने अटेंशन सीकिंग मायशा. मैच मेड इन हेवन, बिग बॉस हेवन. जब लड़ाई हुआ था जंगलवासी वर्सेस प्रतीक वाला, तब ये प्रतीक को कितना धक्का मार रही थी. और ऊपर से मालूम है वो गेट में से कुछ लेके आने का था तो वो ऐसा हाथ लगा रहे प्रतीक को. अफसाना एंड तेज दोनों उसको बहुत पकड़ रहे हैं, उसको वियर्डली टच कर रहे हैं. एंड विजिबली प्रतीक इज वेरी अनकंफर्टेबल. बट आई डोंट वांट टू साउंड लाइक एन इक्वलिस्ट और मेलिनिस्ट. आई एम अ फेमिनिस्ट, बट लेट्स ऑल जस्ट सिट डाउन एंड थिंक अबाउट, अगर यहाँ पर रोल्स रिवर्स्ड होते, अगर यहाँ पे जेंडर्स रिवर्स्ड होते. हम लोग इतने इग्नोरेंट है, इतने ज्यादा, कि वो लोग प्रतीक को पकड़ रहे हैं, पीछे से पकड़ रहे हैं, उसको वियर्डली टच कर रहे हैं. मायशा इज पुशिंग हिम और कोई कुछ नहीं बोल रहा है. एट द एंड ऑफ द एपिसोड उसको भी हंस के टालना पड़ा. नेक्स्ट इज निशांत. वी लव निशांत. वो मस्त खेलता है, एक्चुअल में वो खेलता है. हाँ. प्रतीक भी एक्चुअली काफी इमोशनल हो जाता है काफी जगह, और इमोशनल होना ऐसे शोज पे नहीं वर्क करता है. बट निशांत नोज व्हाट इज गुड फॉर हिम एंड फॉर प्रतीक, एंड आई थिंक ही इज अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड. अरे हमें और बहुत बात करना था, बट 2 कंटेस्टेंट ऐड कर दो ना हमारे. हाँ. बट जैसे जैसे शो आगे जाता जाएगा हम लोग और बात करते जाएंगे इसके बारे में, इफ you guys want us to. And if you guys want to see what happens to this egg head of mine, make sure that you watch his vlog right after mine. हमने timings switch कर दिया है to keep it a little interesting. Make sure that you comment down below and let us know if you guys like our take on Big Boss and not the typical episode by episode review. This is just our personal opinion and like
सब कुछ ऐसा ओवरऑल वाला थोड़ा. So let us know if you guys like that. Like, share, subscribe, do your thing. And अब हमें निकल जाना चाहिए क्योंकि बहुत लेट हो रहा है. और मुझे सबसे गाली नहीं खाना. बर्थडे पे गाली खाता हुआ कितना बुरा लगा. अब तो बर्थडे भी नहीं है, मेरा बर्थडे है. बर्थडे तो मेरा आ रहा है दोस्तों. बताओ मुझको क्या लेना है. कोई कुछ नहीं बताए. Comment down. Anyway, we'll see you guys the next time. Take care of yourself and